Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we continue our discussion on the binary codes, right? And hopefully today we'll complete the binary codes, and next time we'll talk about new things. Okay, let's quickly summarize what we have been saying. So, why we need binary codes? You to understand binary code, and what for you need binary codes? किसके लिए चाहिए फिर? Why we need binary codes? Anybody from the girls? Why we need them? Why we need to code the things? Sir, because the computer interprets the messages as high or low. So we use binary code with only as low. basically, we want to represent the discrete information. We want to represent the discrete information like digits. They are discrete information. 0 to 9, 9 digits. Right? So that's why we assign a code, so it will understand which digit it is. If it is colors, so maybe 3 colors, then it is a discrete value, right? And when we assign code 0001, it understands what the discrete quantity is. Right? We have been doing 2 labs on this, right? We have been assigning code like speed detection codes. We are assigning 3 discrete speed limits with 2 bits. So that's why the codes are needed for representing discrete information. Because we don't need numbers, we want to represent the discrete information also. Okay, to represent discrete information, and n bits, you know, n bits can represent how many quantities? 2 raised by n quantities. And if so many quantities are there, you can always find out n, right? Vice versa. So decimal digits represent each digit separately, and we said we had a lot of other codes like BCD code, XS3 code, right? And even the codes with minus weightages, right? And then 1, 2, 3, 4 code. So the codes could be anything. How you represent discrete information into ones and zeros, right? Okay, BCD addition. Last time we did that. Everybody understand what is the procedure? Okay, and the simple technique we use that if we add 2 BCD digits and if the sum is more than 9, right, then we add 6. Otherwise we add 0 basically, right? Okay, BCD arithmetic. How we represented positive and negative numbers in BCD? No, how we represent plus sign and minus sign in BCD? Minus sign by 9, plus sign by 0. That becomes sign BCD, right? And so 00 for positive, 1001, which is 9 for negative, right? And then this was the procedure, right? We have to see if we are having a negative number, we want to subtract, so we'll again use tens complement, right? Tens complement of each digit, whatever the numbers, and then we just add it, and when we add, basically we are subtracting, right? And what was the basically criteria for this? How we take the negative numbers? Tens complement, how we take tens complement? Giving least significant zeros, first digit from 10, rest from 9. Right? They are बिल्कुल आपके fingertips पे होनी चाहिए सारी चीजें. और in the exam you don't have the time to think, right? It should be very clear to you. अगर आप थोड़ा सा भी confused हो जाएंगे तो things will be different. सही है नहीं? अच्छा. ये हमने नहीं किया था, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. Let's say if everything has to be handled at binary level, how we do it? Let's do this. Before we start the gray code,
Let's take one example and handle everything in binary, right? So we are doing basically the BCD addition. BCD, I'm not discussing the gray code now, I'm discussing the BCD arithmetic, right? Let's say I want to subtract, let's say 276, or let's say 270, right, minus 160. If I want to do this subtraction using signed BCD, how should I do it? You know the answer, what should be the answer, right? But let's say if I ask you to do everything in binary, then how you will do it, right? So for plus sign, you can easily represent. So plus 270, how it will look like? So plus will look like a plus sign like this, right? And then 2 will be binary 2, and then you have 7, right, which is like this, and then you have a 0. Okay, any doubt, Ji? So we are representing each digit with 4-bit code, right? And that's BCD code. Right? Okay, what about minus 160? Okay, if we look at minus 160, we have to first look at plus 160, and then take 10's complement of that, and we will get the answer, right? So let's look at first plus 160, right? So plus 160 will look like this: 0, 1, 6, and okay, let's take some other number. I think we better if we take 3 here, right? We take 3 here. Where is my cursor? There was no eraser, I used white color intelligently to top off things, right? Okay. Okay. So 163. So 0, 1, 6, and then 3, right? 0, 0, 1, 1. Okay. So I have represented. So remember, every time you take complement, always represent sign number with positive number, and then take the complement. It's always good. Even in the binary, you have to represent last digit as a 0 as positive number, and then take the complement. If you don't add the sign, the number will run out, right? Okay. So 163. So okay. So if I now take the 10's complement, what will be the 10's complement of this? 10's complement of 163. जी क्या होगा? 837, right? अगर यहाँ 0 कोई होता तो वो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस को लीव कर देता, and then the first digit from 10 rest from 9. अच्छा, अब बाइनरी में ये कैसे करूँगा? इसका 10's कॉम्प्लीमेंट लेना है मैंने बाइनरी में, क्या करूँगा? क्या करें? नहीं, वो तो आपको पता है ना, लेकिन कंप्यूटर, लेट्स से कंप्यूटर हैज टू डू इट, यू नो कि भाई अच्छा 10 में से 3 गया तो 7 आ जाता है, लेकिन हाउ द कंप्यूटर विल डू इट टोटली इन बाइनरी. दूसरा कॉम्प्लीमेंट ले लें, उससे क्या हो जाएगा? नहीं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट से 7 तो नहीं आ जाएगा. Complement से 7 आ जाएगा. Each individual digit. Have you understood what I'm saying? I'm saying now I know the answer. इसका 10's complement 837 होगा. लेकिन let's say if the computer has to do it,
it has to do it in binary, right? So how I proceed in binary so that I get this answer? Just saying कि BCD code का 2's complement BCD कोड का 2's complement 2's कॉम्प्लीमेंट से क्या ये आंसर आ जाएगा? वो हाई डिजिट को फिर हम बाइनरी में 10 लिखते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो नीचे से कॉम्प्लीमेंट किए और आगे के लिए कैसे ये 3 का 7 कैसे बना? 10 माइनस 3। तो इसका मतलब है कि इसको ये जो 3 है इसको पहले मैं माइनस में मतलब रिप्रेजेंट करूँ, -3 रिप्रेजेंट करूँ। -3 कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? और उसमें क्या ऐड करूँ? 10। फिर वो 10 - 3 होगा तो 7 आएगा। So I take 2's complement of each digit, right? And if n carry occurs, I discard it, right? And then add to the least significant non-zero digit 10. I add 10, and that's all 9. That's why so it is subtracted from there. ये बात समझ में आती है आपको या नहीं आती? Okay, let's look at mathematically. Let's say I want to subtract a number, ठीक है, let's say 4 है, 4 का 34 है, let's say, ठीक है, ये मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये मेरा वो सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अच्छा, जीरोस अगर होंगे तो जीरो तो एज इट इज आ देंगे, और मुझे ये पता है कि इसका 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 10 फर्स्ट डिजिट को मैंने 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, और बाकियों को 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस विल बी अगेन 6, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि जीरो, अच्छा, जीरो का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0। हमेशा याद रखें कि आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ जीरो इज 0, राइट। ओके, अच्छा, 4, अब ये 4 एक मेरे पास नंबर है, लेट्स से कॉल दिस एज n0, राइट। तो मैं इसका क्या लेना चाह रहा हूं? अगर 10 से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं तो ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास? 10 माइनस द नंबर। मैं ये मतलब ये ऑपरेशन करना चाह रहा हूं ना कि इस नंबर को 10 से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। सो बट इफ आई टेक 2's complement of this, what I get? 2's complement of 4 is what? 2's complement कैसा होता है? देखिए, अच्छा, 2's complement की डेफिनेशन क्या होगी? Can somebody give me the 2's complement definition? 2's complement की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कैसे लेते थे? 2 raised to power n माइनस द नंबर, यही लेते थे ना, ठीक है, या r raised to power n, जो भी, अगर ये r, चलो इसको r कर लेते हैं, r raised to power n माइनस द नंबर, दैट वाज अ r's कॉम्प्लीमेंट, राइट। मैं इसका r's कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए डिजिट का? ये। तो क्या करूं मैं इसमें? यानी जो एंड कैरी आए उसको मैं डिस्कार्ड कर दूं, ठीक है, और इसमें मैं 10 ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा ना, ये चीज आ जाएगी, ये देखें 10 माइनस n0 आ गया, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग 2's complement ऑफ दिस, ये 4 या ये 3 था, इसका मैं क्या करूंगा? 2's complement लूंगा, तो वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा? -3, और उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा, तो वो 10 - 3, द सेम थिंग, ठीक है। So the rule is represent first, जो भी नेगेटिव नंबर है उसको मैं पॉजिटिव में पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ BCD में, और फिर उसका मैं 2's complement लूंगा। तो इसका 2's complement लें जी, पहले डिजिट का 1, तो आई एम टेकिंग ये 2's complement ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये अगर मेरी A इक्वेशन है तो इसका मैं 2's complement ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये 1 आ गया, 0 1 1, हर डिजिट का आपने 2's complement लेना, हर डिजिट का सेपरेटली, नॉट इन सीरीज, राइट। इसका 2's complement क्या होगा? 0 1 0 1, राइट।
इसका क्या होगा 1 1 1 1 which is -1 basically, right? और 2's complement of 0 is what? 0. तो मैंने क्या प्रोसीजर किया, उस नंबर को डायरेक्टली 10 से सब्ट्रैक्ट नहीं किया या 9 से सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि 2's complement ले लिया, क्योंकि आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग इन बाइनरी, राइट? अगर तो मैं मतलब मैथ्स में कर रहा होता तो मैं 10 से उसको सब्ट्रैक्ट करके जैसे मैंने पहले लिखा था लिख देता, राइट? और जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि वो हमने 7 3 और 8 लिख दिया था और उसको ऐड कर दिया, राइट? सो अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूं जी कि 8 3 7 आ जाए। इस पहले वाले में पहला नॉन जीरो डिजिट विल बी वी ऐड 10 टू इट। 10 क्या होता है जी बाइनरी में? 1001, और 9 बाकियों में 9 ऐड कर दें, ठीक है जी। 1001 1001 1001, ठीक है जी। समझ आ गई हम क्यों कर रहे हैं? ये देखें, ये 10-3 हो जाएगा, ये 10-7 हो जाएगा, क्योंकि ये -7 है, राइट? सो ऑटोमेटिकली हमारे पास यही चीज आ जानी चाहिए। अब इसको ऐड करें, देखें यही चीज आती है या नहीं आती, ठीक है। तो क्या आया जी? 1 1 1 1 and 1 is 2, right? एंड कैरी, ये एंड कैरी इधर चला, ठीक है। ये 7 आ रहा है ना हमारा, ठीक आ रहा है, ठीक है। अगर ये डिजिट बीसीडी डिजिट 9 से ज्यादा होगा तो आप 6 ऐड कर देंगे, अगर 9 तक है तो फिर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं अभी इसमें कुछ नहीं ऐड कर रहा, ये मेरे पास 7 ही आ गया पहला डिजिट। अच्छा, ये किया जी, 1 and 1 is 2, 1 carry, 1 and 1 is 2, right? And 1 and 1 is again 2. अच्छा, सॉरी इसमें अच्छा, when we add this, अच्छा टेकिंग 2's complement, अच्छा इसमें जो सॉरी ये हम गलत कर रहे हैं, जो आपका एंड कैरी आएगा उसको डिस्कार्ड करना है आपने। इस केस में ये जैसे हमने ये कहा था ना, जो एंड कैरी आएगा उसको हमने डिस्कार्ड करना है, तो फिर हमें ये चीज मिलेगी। सॉरी, ये ऐड नहीं करना इधर। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 1 1 0 1। लेट मी राइट नाइस, ठीक है। यानी इन दोनों को जो सम करेंगे आप, इन दोनों को जो सम करेंगे, राइट, उसमें जो एंड कैरी आएगा उसको आपने डिस्कार्ड करना है, फिर आपके पास वो एक्चुअली सिंगल डिजिट का 10 माइनस नंबर आ जाएगा या 9 माइनस नंबर आ जाएगा, राइट। सो दिस एंड कैरी इज डिस्कार्डेड, राइट। सो वी डोंट हैव दिस एंड कैरी, वी जस्ट यहां से जो एंड कैरी आया था वो जस्ट सिंपली हमने डिस्कार्ड कर दिया, राइट। अब देखें आगे क्या आ रहा है? 1 1 0 0, जी क्या हुआ जी? हर डिजिट का निकाला, हर डिजिट का सेपरेट निकाला। बाकी हमने फर्स्ट डिजिट में 10 ऐड कर दिया, बाकी में 9 ऐड कर दिया। देखिए पहले डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, so that's why we added 10. So 10 minus 3, ये minus 3 है, ये इसका 2's complement लेते हैं, क्या है ये? What is this number? minus 3. अगर ये 3 था तो ये जो है minus 3. इसका 2's complement 0 का 0 ही होता है, 0 का 2's complement 0 ही होता है। अगर डेफिनेशन आप देखें तो हमने डिफाइन किया था 2's complement 2 raised to power n minus the number, और 0 के लिए 2's complement 0 ही होता है। That's why लास्ट डिजिट 0 था, अगर दरमियान में भी कहीं इधर 0 आएंगे तो वो भी 0 ही होंगे, उसका 2's complement नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज
ठीक है, हम क्या सिंपली ऐड करते जा रहे हैं और जो एंड कैरी आ रहा है उसको डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक ठीक आंसर आ रहा है जी। अच्छा, लेट्स सी ये क्या होगा। 1 and 1 is 2, 1 here, 1 and 1 is 2, 1 here, 1 here, right? And 1 and 1 is 1, and you discard it. You get 8, right? अच्छा, तो बाकी क्या आ गया जी? सॉरी, ये स्टेप नहीं करेंगे। आगे ये क्या आ जाएगा? 9। तो आप देखें ये क्या है, बेसिकली टेंस कॉम्प्लीमेंट ये चीज आएगी। 9 8 3 7, 9 ये 9 है, ये 8 है, ये 3 है और ये 7। ठीक है, वही नंबर आ गया जो हमने पहले वैसे मेंटली किया था। We knew maths, we knew that how to take tens complement, वो हमने डायरेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर कंप्यूटर ने करना है तो वो यूज कॉम्प्लीमेंट लेगा और हर डिजिट में वो देन पहले नॉन जीरो डिजिट में, अगर जीरो है तो जीरो को वैसे ही लीव करेगा, जीरो को कुछ नहीं करेगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में 10 ऐड करेगा और बाकियों में 9 ऐड करेगा एंड टू सिंपली ऐड। और अभी आप हमारे पास ये क्या चीज आ गई, -136। दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन BCD एज -136 और इसको अब हम क्या करें, +270 में ऐड करें। ठीक है, तो अभी दोबारा मुझे रिप्रेजेंट करने पड़ेगा। चलें, कहाँ ऐड करें, इधर जगह है जी कुछ? थोड़ा इसको मेरा ख्याल है थोड़ी सी जगह जरा पार्क कर लेते हैं। व्हाइट के ऊपर व्हाइट इरेजर भी नजर नहीं आता ना, मसला ये। चलें, काफी है। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम एडिंग 270, I'm adding 270 and then adding this 9837, right? या इधर ही ऐड कर लें, मेरा ख्याल है इधर ही नीचे ऐड कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, चलें ऊपर ही कर लें। So I write +270 as 000 to 7 and then 0। ठीक है जी, इसमें क्या ऐड करूं, ये वाला टेंस कॉम्प्लीमेंट 9837। सो 9 8 3 and 7। ठीक है जी, सॉरी। So if I add this, what I get? अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, BCD एडिशन हो रही है। जब BCD एडिशन हो रही हो तो हमें पता है कि अगर अब 9 से ज्यादा डिजिट आएगा तो उसमें 6 आएगा करेक्शन के लिए। So this is simple BCD addition, 2 BCD digits we are adding, right? Okay, so we add this, what we get? 7, ये तो 7 ही आ गया ना सीधा सीधा। ये क्या होगा जी, 1 and 1 is 2, here 1 and 1 is 1, 1 here is 2 here। ये क्या आ गया, 10। So what we add? We add 6 to it। So we add 6 to it, right? इसको भी ठहरे रब कर लूँ मैं। This is beginning, so I add this, right? So what I get, 7 here, 0, 1 and 1 is 2, 1 carry here, 1 and 1 is 2, 1 here, right? And then 0। ठीक है जी, 0 ही आना चाहिए ना हमारा। अच्छा, 1 and 1 is 2। अच्छा, 1 and 1 is 2, ए कैरी इधर से आ रहा है आगे, जो कैरी आएगा उसको आगे लेके जाना है आपने। ठीक है, remember this, when we are adding 2 BCD digits, the carry will go forward।
to the next digit. Right? So if we add this, what we get? 1 here, 0 and 1. Again it is more than 9, so we add 6 to it. Right? So we get 1 here, 1 here, 1 here, and we get 1. ठीक है जी? 1 and 1 is 2 here, 0. Add again 6 to it because what we get? 0, 0, 0, 0, and 1 is discarded. So what is the final answer? 0, 1, 0, 7. यही आता है जी? इसको माइनस करें तो पॉजिटिव 107 आना चाहिए. वो पॉजिटिव 107 आ जाएगी. You got the idea जी? Basically आपने अगर प्योरली बाइनरी में सारे ऑपरेशन करने हैं, तो यू जो भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर, उसके हर डिजिट को आपने 2 कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. फर्स्ट नॉन जीरो में 10 ऐड कर रहे हैं, बाकी में 9 ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये नेगेटिव नंबर मिल जाएगा. और ये नेगेटिव नंबर आपने इस पॉजिटिव नंबर में ऐड कर देना है. जस्ट लाइक अ BCD एडिशन कैन बी आंसर. ठीक है जी. एंड हाँ, अगर यस यू आर राइट, अगर एंड कैरी नहीं आता तो मे बी यू हैव टू टेक, क्योंकि अगर वो नेगेटिव नंबर ज्यादा होगा तो एंड कैरी नहीं आएगा. राइट? देन यू हैव टू टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट. वेरी गुड. मुझे आप तो एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछे. ठीक है, ऐसी चीजें एग्जाम में हमने टेस्ट करनी होती. चलो जी, ठीक है जी. Now let's talk about the gray code. Anybody have heard about this code? Gray code? क्या चीज है ये? हमने बाकी कोड्स की बात की ना, 1 2 3 4 नेगेटिव की भी बात की, 1 2 3 4 कोड भी है. जी, और कंसेक्टिव कोड जो है, वन कोड टू अनदर कोड, वन बिट चेंज होता है. चलो देख लेते हैं, और उसका पर्पस फिर आप मुझे बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो वी यूज ग्रे कोड converted from analog data. The advantage over the state binary is that one bit in the code changes when goes from one number to next. यानी 0 से 1 एक बिट चेंज होगा, 1 से 2 भी एक बिट चेंज होगा. जैसे देखें ना, ये अगर हम बाइनरी में चले, बाइनरी में क्या हो रहा है? बाइनरी में सिंपल अगर मैं ये लिखता हूं 0 और ये 1, ये क्या है? 1 बिट चेंज, ओनली सिंगल बिट है सेम. और आगे चलूं अगर 2, ये कितने बिट चेंज है? 2 बिट. ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, 2 बिट चेंज. ठीक है. और इसी तरह ये क्या है? अ सिंगल बिट चेंज. तो कभी 2 बिट चेंज हो रहा है, कभी 1 बिट चेंज हो रहा है. हम ऐसा कोड लिखें कि एक नंबर से दूसरे कोड पे सिंगल बिट चेंज हो. ठीक है. और वो हम आज सीखेंगे कि कैसे लिखना है और वेयर इट इज यूज्ड. बेसिकली फायदा क्या है एक बिट चेंज का, 1 बिट चेंज का फायदा क्या होगा. ठीक है. ओके. सो बेसिकली दैट्स द कोडिंग. अभी हम इसको लिखना भी सीखेंगे और फिर बाइनरी से ग्रे कोड में भी सीखेंगे कन्वर्जन, और ग्रे कोड से बाइनरी में भी आएंगे. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट द नंबर्स, कैन यू टेल मी कि 1 बिट चेंज है या नहीं? ये देखें, इधर से इधर 1 बिट चेंज, ये वही है, ये 1 बिट चेंज, ये वही है, ये 1 बिट चेंज. ठीक है. तो अब 3 जो होगा वो इस तरह रिप्रेजेंट होगा, 0010. That in gray code 3 is like this. This is not 2. This is not binary code. This is gray code, right? कि एक कोड से दूसरे कोड पे जाने के लिए सिर्फ सिंगल बिट चेंज हो रहा है. ठीक है. और 4 5 और 6 कैसा होगा? ठीक है. 6 जो है वो 5 की तरह होगा. एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में सिर्फ एक सिंगल बिट चेंज हो रहा है, और वो ये देखें एरो से इंडिकेट किया हुआ है. ये भी देखें, इसमें कौन सी बिट चेंज है? ये बिट चेंज है सिर्फ, बाकी सेम है. ठीक है. कोई भी कोड आप उठा लें, यहां से यहां जाए तो इसमें ये लास्ट वाला बिट चेंज हो रहा है, बाकी सेम है. ठीक है. और इधर जो है वो ये लास्ट बिट चेंज हो रहा है. ठीक है. इधर जो है ये वाला बिट चेंज हो रहा है. तो अ सिंगल बिट चेंज इज देयर.
तो अभी हमें ये पता लग गया कि एक नंबर से जाने से दूसरे नंबर जाने पे 1 bit चेंज आता है. So then somebody tell me why we are doing it, why we are designing the code like this, what is the advantage, फायदा क्या हुआ? अगर कॉम्प्लिकेटेड कोड बना दिए सीधा सीधा बाइनरी में लिख लेते जिंदगी आसान हो जाती, तो ग्रे कोड भी क्यों निकालते? बिकम्स अ ग्रे मैटर. ठीक है, जैसे स्विच उसके अंदर टाइम में दोनों से ऑन ऑफ होने में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी आ जाती है ना, तो इसलिए वो करते हैं कि ब्रेक हो गया सिंपल वन स्विच ऑन हो या ऑफ हो, फिर आगे वो खराब होता है. so you are closer but not clear answer. Can somebody answer this? Why we need this? Why we need 1 bit change? जी? क्या चीज करते हैं लोग? ठीक पूछे. चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मसलन एक जैसे उस दिन हमने प्रोजेक्ट्स की बात की थी, एक कैमरा है जो एंगल एक रोटेट कर रहा है, एक स्पिंडल पे या एक प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, एंड वी आर मूविंग इन एंगुलर स्पीड, राइट? तो अगर लेट्स से एंगुलर स्पीड है और इफ आई हैव लेट्स से एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेट्स से ये इस टाइप की चीज है, एक शाफ्ट है, राइट? ये एक शाफ्ट है, ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं पूरे प्लेटफॉर्म को. आई एम ट्राइंग टू रोटेट, राइट? आई एम ट्राइंग टू गिव अ एंगुलर मोशन, ठीक है. तो वो एंगुलर मोशन मैं डिटेक्ट भी करना चाहता हूँ कि अब मेरा जो ये मूव है या ये कैमरा आपको माउंटेड है, तो आप वो किस पोजीशन में लुक कर रहे हैं, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ कि इसके लेट्स से ये जो मेरा सर्कल है, ये सर्कल मैं ये ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है. सो आई एम ड्रॉइंग द सर्कल हियर, आई एम ड्रॉइंग द सर्कल हियर. So what I do, I divide this into 4 sectors. ठीक है. तो अब इससे क्या होगा कि मैं कोडिंग कुछ इस तरह कर दूंगा इसकी कि पहले की कोडिंग 0-0, दूसरे की 0-1, तीसरे की 1 bit change, 1-1 and 1-0, राइट? तो 1 bit change मैं रखूंगा ताकि मुझे पता लगे कि ये अब सेक्टर नंबर 1 गुजर रहा है, ये 2 गुजर रहा है, 3 गुजर रहा है, 4 गुजर रहा है. अगर 1 bit change नहीं आती तो मुझे फौरन पता लग जाएगा देयर इज सम एरर, ठीक है, देयर इज सम एरर. ये अगर देखिए ना, अगर मैं इसकी कोडिंग कुछ इस तरह कर देता हूँ कि ये मेरा जो ये सेक्टर जब गुजर रहा है तो उस वक्त कुछ आउटपुट मुझे 0-0 मिले, और ये वाला सेक्टर गुजर रहा है उस वक्त 0-1 मिले, और ये वाला जब मिल रहा है तो 1-1 हो, यानी 1 bit चेंज हो ना. इसके बाद ये सिंगल बिट चेंज हो रही है, और इसके बाद इसमें सिंगल बिट चेंज, राइट? ये वही है, इस लास्ट वाला बिट चेंज हो रहा है, और इसके बाद फिर ये आ रहा है. तो एक कंटिन्यूअस आपके पास फ्लो है. अगर 1 bit change नहीं आती, so there is some problem in the system. I'm not getting 1 bit change. One sector, 2 sectors, 3 sectors, 4 sectors. So I'm not getting 1 bit change. There is a problem. So it has an error correction inherent property. अब देख लेते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होगी और हम मॉनिटर कैसे करेंगे. अब ये देखें, तो पहला सेक्टर जब गुजर रहा हो तो मैं कैसे मेरी आउटपुट बाइनरी 0-0 हो, कैसे डिटरमिन करूँ? व्हाट मैकेनिज्म आई मेक कि मैं इधर दो तारे लूँ, कैसे पता लगे मुझे कि ये 0 सेक्टर मेरा गुजर है, 0 से 90 वाला सेक्टर गुजर है, और मुझे आउटपुट क्या मिले 0-0. और अगर दूसरा सेक्टर गुजर रहा हो, मैं घुमा रहा हूँ उसको, अगर वो दूसरा सेक्टर गुजर रहा है, मैं कुछ ऐसे सेंसर्स लगाऊं ताकि मुझे आउटपुट 0-1 मिल जाए, और फिर 1-1 मिल जाए, 1-0 मिल जाए. तो कैसे सेंसर्स लगाऊं ताकि मुझे इस तरह की आउटपुट मिल जाए? जी, कैन यू विजुअलाइज? ये प्रॉब्लम आ गया ना. मैं 1 bit चेंज चाह रहा हूँ और मेरी आउटपुट्स इस तरह चाह रहा हूँ कि वो सेक्टर गुजर रहा हो तो 0-0 आए, ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर गुजर रहा हो तो 0-1 आए आउटपुट, थर्ड सेक्टर गुजर रहा हो तो 1-1 आए, फोर्थ सेक्टर गुजर रहा है तो 1-0 आए. कैसे इंश्योर करें? होल्स कर लें. अच्छा, उससे क्या होगा? ऊपर लाइट डाल दें. इन्होंने लेक्चर सारे पहले एक्चुअली सुने हुए हैं, ऐसे ही है ना.
कलर सेंसर फिर हमें कलर पढ़ने पड़ेंगे ना, वो एक मुश्किल काम है। ठीक है, इसमें हम सिंपल मैकेनिज्म रखते हैं कि ऊपर एक लाइट सोर्स रख लेते हैं और एक सुराख कर देते हैं। इसमें देखें आप, इसमें कोई सुराख नहीं करूंगा। जब इसमें कोई सुराख नहीं करूंगा तो आउटपुट क्या होगी? मैं इस तरह कर रहा हूं ना, ये एलईडीज इधर ऊपर रख रहा हूं, ये क्या है? मेरे लाइट सोर्स हैं और नीचे मेरे डिटेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इधर अगर मैं सुराख होंगे तो ये लाइट गुजरेगी और इधर से मुझे 1 मिल जाएगा। अगर लाइट नहीं गुजरेगी तो 0 मिलेगा। तो अब पहले सेक्टर में मैं किस तरह के सुराख करूं? कोई सुराख नहीं। और इधर हाँ, ये 2 सेक्टर हैं, तो यहां पे मैं सुराख कर दूं। ठीक है, जब ये गुजरेगा तो यहां से ये 0 मिलेगा और यहां से क्योंकि लाइट पास हो जाएगी इसको 1 मिल जाएगा। और ये क्या होगा? इसको 2 सुराख इधर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इधर 1 मिल जाएगा। इधर कैसे करूंगा? और ये बाइक की तरफ तो 2 आउटपुट जब मैं लूंगा तो विल आई गेट दिस। मुझे देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम मिल गया कि अगर मुझे अब एंगल मेरी अगर एरर आ रहा है, इसका मतलब कोडिंग अगर मेरी नीचे सही जनरेट नहीं हो रही, 1 बिट चेंज नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही डिटेक्ट कर देगा इट इज सम प्रॉब्लम। रेंज स्विच वो क्या होता है? हाँ चले, वो भी मैकेनिज्म, लेकिन दैट्स वेरी इजी वे कि आप सुराग जो है वो ग्रे कोड के मुताबिक कर लें तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यू गॉट द आइडिया। और अच्छा, आगे चल के जो हमने कार्नो मैप पढ़ना है वो सारे ग्रे कोड पे है। हमें ग्रे कोड में लिखना है ताकि 1 बिट चेंज आए, ताकि उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें वेरिएबल, वो आगे चल के हम देखेंगे। दैट्स अनदर एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, तो लेट्स सी फर्दर। और ये बाइनरी में बता दिया। और देखें 1 बिट चेंज उधर सिंगल ग्रे में 1 बिट चेंज आ रही है, बाइनरी में नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की सुराख करेंगे जी आप। ठीक है, लाइट सोर्स एंड ये थोड़ी जरा फिगर बेहतर है। और ये कितने बिट है? कितने बिट का ये ग्रे कोड है? 5 बिट कोड। ठीक है, तो और अगर 5 बिट कोड है तो कैन यू टेल मी व्हाट एंगल इट इज डिटेक्टिंग? फिर वही 2n वाली कहानी आ रही है। ठीक, जब 5 बिट कोड है कैन यू टेल मी? देखिए 2 बिट कोड से 90 डिग्री का एंगल मिला 360/2 क्या हो जाएगा? 72 डिग्रीज का मुझे रेजोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें कुछ कोडिंग इस तरह, सुराख जो हम करेंगे कुछ इस तरह के करेंगे। ठीक है जी। और ये देखें, ये अगर 3 बिट कोड है तो ये एंगल आपके पास कितना बन रहा है? 45। ठीक है, यानी 1 बिट बढ़ाने से आप फर्दर एंगल को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर 3 बिट है तो आई एम गेटिंग 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कोडिंग की है ना बेटा हमने, सुराख ऐसे किए देखिए ना, ये 0 0 1, सुराख में से लाइट पास हो जाएगी, नीचे डिटेक्टर होगा तो 1 आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला सेक्टर गुजर रहा है। यू वांट टू डिटेक्ट कौन सा सेक्टर गुजर रहा है। बाइनरी में 1 बिट चेंज या हमें पता नहीं लगता कि वो बाकी वो सही सेक्टर आया है या नहीं आया, क्योंकि इसमें 1 बिट चेंज एक्सपेक्टेड है और 1 बिट चेंज आनी चाहिए। वो अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये एरर भी डिटेक्ट कर रहा है। इट्स इनहेरेंट एरर डिटेक्शन मोड। 3 लाइटें होंगी और 3 नीचे सोर्स होंगे और वो इस तरह डिटेक्ट करेगा। तो आइडिया हो गया जी आपको एप्लीकेशन का। ये 4 बिट का आ गया। और 4 बिट का क्या एंगल बन रहा है? 45 का हमारा आधा कर लें। तो बेसिकली 1 बिट बनाने से आप क्वांटिटी डबल हो जाती है। ये हमने हमेशा कहा है, एक सिंगल बिट से मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। तो ये आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स से कोई भी नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, उसका ग्रे कोड आपने बनाना है। कैसे? मतलब आप वो ग्रे कोड पे अगर मैं लेट्स से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इफ आई वांट टू राइट अ ग्रे कोड, अच्छा ग्रे कोड राइटिंग का पहले मैं आपको सिंपल मैकेनिज्म बता दूं। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। मसलन ग्रे कोड मैंने 4 बिट का ग्रे कोड लिखना है, ठीक है, 0 से 16 तक लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? तो द मैकेनिज्म इज वेरी इजी, राइट। सो आई स्टार्ट विद 0 0। ये अब मैं ग्रे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है।
आई एम राइटिंग अ ग्रे कोड। बाइनरी लिख दूं? चलो बाइनरी अभी नहीं लिखता मैं। बाइनरी तो पता है ना क्या होगी, 0 से 15 तक, वो पहली एक्सरसाइज की थी हमने, 0 से 20 तक आपको होमवर्क मिला था, ठीक है। अब ग्रे कोड में 0 से वैसे 20 तक लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ग्रे कोड में मैं स्टार्टिंग किससे लूंगा? ऐसे 4 बिट से मैं स्टार्ट लेता हूँ, 4 बिट। यू कैन राइट एनी कोड, राइट। तो सिंगल चेंज क्या होगी, मैं सिंगल बिट इसको चेंज करूंगा, ठीक है। सो आई एम पुटिंग अ मिरर एंड आई एम ओनली चेंजिंग अ सिंगल बिट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको मैं चेंज कर रहा हूं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये मेरे पास 2 कोड बन गए, लास्ट बिट चेंज किया और 2 कोड बन गए। फिर क्या करूंगा, मैं मिरर इधर रख दूंगा, आई विल पुट अ मिरर, और ये इसको वैसे ही करूंगा, ठीक है। अब यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन इसी तरह आएगी और ये वाला बिट जो है मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है जी। या आप ये समझें कि ये लास्ट वाला बिट मैंने चेंज कर दिया और ये उसी तरह रिफ्लेक्शन आ गई, ये 1 का 1 आ गया, 0 का 0 आ गया। रिफ्लेक्शन समझ आती है? जैसे मिरर होता है, जो चीज करीब होगी वो रिफ्लेक्ट होगी और जो दूर होगी वो उसी तरह आएगी। So what I have done, I have written 4 codes now. ये मैंने यहाँ मिरर रखा, ये इसकी रिफ्लेक्शन, ये इसकी रिफ्लेक्शन, राइट, और इधर एक 1 लगा दिया, तो ये जाहिर है ये सेम है, ये सेम है और ये बिट एक सेम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट अगर मिरर रखता हूं तो क्या होगा, कहां चेंज लाऊं? इस बिट में, और ये सारे 4 के 4 में रिपीट कर दूं, रिफ्लेक्ट कर दूं। यहां पे 1 लगा दूं, यहां पे 0, और ये सारे 4 के 4 जो बिट हैं वो आगे रिफ्लेक्ट कर दूं। तो क्या होंगे कोड्स? पहला कोड क्या होगा, ये इसकी रिफ्लेक्शन है ना बेटा, 1 0, और इससे बाद 1 1, इससे बाद 0 1, उससे ऊपर 0 0, ठीक है। और ये सारे वही होंगे। समझ आ गई बात की? सो दैट्स व्हाई द ग्रे कोड इज आल्सो कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन कोड। रिफ्लेक्शन हो रही है, मैंने इधर मिरर रखा है तो लास्ट 3rd बिट को मैंने चेंज किया, बाकी 2 बिट्स की मैंने रिफ्लेक्शन दी, ठीक है। अगर फर्दर इसको 8 के 16 बनाना चाहता हूं फिर क्या करूं? 8 के 16 बनाने हैं तो मैं लास्ट बिट को चेंज करूंगा और ये 3 बिट्स की बेसिकली रिफ्लेक्शन लूंगा। 3 बिट्स की रिफ्लेक्शन क्या आएगी जी? ये इसकी आ गई, ठीक है, ये इधर आ जाएगी 1 0 1, और आगे, ठीक है, आगे सॉरी 1 1 1 0, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या होगी? 1, ये इसी तरह रिफ्लेक्शन चलती है, ठीक है। यू कैन राइट इट, 16 बन जाएंगे, तो 16 के 32 बना रहे हैं, तो फिर लास्ट बिट चेंज करें और पूरे उसको रिपीट करें, ठीक है। वेरी सिंपल। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यू कैन राइट एनी बाइनरी ग्रे, कोई भी नंबर आपके पास हो उसका ग्रे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन वाला प्रोसीजर तो ये है ना कि अगर कंटिन्यूस लिखने आए, ठीक है, अगर कोई भी नंबर को मैं ग्रे में चेंज करना चाह रहा हूँ, दिस इज द प्रोसीजर। तो शायद आपकी किताब में भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये कन्वर्जन वाला शायद आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। क्या करूं जी, इसको क्या चेंज करूं? तो इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि पहले 1 को मैं क्या करूंगा, इटसेल्फ कॉपी कर लूंगा, ठीक है। फर्स्ट 1 इज कॉपीड, ये यहां पे पहला 1 जो है इसी तरह ये कॉपी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करूं, एक एक्सक्लूसिव और ऐड कैरी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट मैंने ऐड करना है, बाइनरी से ग्रे में जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट से राइट को ये इन 2 को मैं ऐड कर दूंगा, या इनका एक्सक्लूसिव और ले लूंगा। एक्सक्लूसिव और अभी नहीं आपने समझा, एक्सक्लूसिव और होता है कि अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा, अगर एक जैसे हैं तो 0 आएगा। जब 1 और 0 को ऐड करें तो क्या होता है, 1, और 1 1 को ऐड करें 0, राइट। तो कैरी को डिस्कार्ड कर दें, तो 1 और 0 क्या आएगा, 1 और 0 1, और इसी तरह आपने ऐड करते जाना, 0 and 1, 1 and 1, 1 and 0 1। तो ये इसका ग्रे कोड बन गया सीधा सीधा,
ठीक है जी, देखिए यही आया 11101, ठीक है जी। So first one as it is और left to right जाना है, सही। और उल्टा अगर करना हो, इससे ग्रे से बाइनरी में जाना हो, तो फिर ये आपने डायगोनली करना है। 1 कॉपीड एज इट इज लाइक दिस, पहला एक, और फिर ये डायगोनली ऐड करना है आपने इसको। 1 और 1 क्या आएगा? 0 और 0 0 0, भाई 0 0 0 होता है। 0 and 1 is 1, 1 and 1 is 0। तो ये देखें इसका बाइनरी बन गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ग्रे टू बाइनरी कैसे जाना है और बाइनरी टू ग्रे कैसे जाना है। एनी नंबर, एनी बिग नंबर, यू कैन टेक अ ग्रे कोड वेरी इजी। ग्रे कोड आगे यूज होने, ये थोड़ी सी आपको कन्वर्जन की भी हम प्रैक्टिस ये ग्रे कोड था, इसका बाइनरी बनाना है। ग्रे कोड दिया हुआ है, जैसे ग्रे कोड पूरे देखे थे, बाइनरी भी देखे थे, और ग्रे कोड डिफरेंट है ना, 1 बिट चेंज। इसमें हमने क्या किया है, डायगोनली ऐड करें, ये इसमें ऐड किया, ये इसमें ऐड किया, डायगोनली ऐड करें, एंड ठीक है, ये वी आर डायगोनली एडिंग दिस। ये इसका इधर, ये इसमें ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है, ये इसमें ऐड हो रहा है, और हम ये नीचे लिखते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? तो ये एस की कोड और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, और एरर डिटेक्शन कोड, पैरिटी की भी हम बात कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और ये तकरीबन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी।